Good evening, dear students. Today we are starting chapter number 5 of macroeconomics. I welcome to all the students in NCA classes. Earlier we have completed chapter number 4, calculation of national income accounting, three methods of calculating national income, production method, income method, expenditure method. We have completed all the methods and some examples. Now next topic we are starting, next chapter we are starting, and the name of the chapter is money. Chapter 5, money. First we will understand what is money. In our routine life we can see and observe and feel money as a medium of exchange. Every commodity we are buying from the market, we need money. If we are selling something, doing business, then the customer will provide us, will give us money that will be useful for us. Money is the common source of exchange, and it has important role in overall economic activities, not only in our individual life but in business life, for the nation, for development of nation, for economic transactions, for economic activity, for buying and selling. For every exchange we need money, because at this time we are not having barter system that earlier we were adopting. At this time, we are having the common source of exchange, money. Today, we will read about money. First, meaning of money. What is money? So, please write meaning of money. Meaning of money. Definition of it is a thing which commonly accepted as a medium of exchange. Medium of exchange is called money. Example, rupees in India, dollar in America. So, money is the common source of exchange. The activities we are operating, doing, all are depend upon money. For exchanging of goods and services, for providing anything or buy something, we need money. Next, please write. Now we will write about journey of money. Next topic will be journey of money. Journey of money. So the money we are using at this time, its origin is, the history of it is so old. In starting, we were having barter system. It means if we want to buy something, we will have to give something to other. हमें कुछ खरीदना होता था तो किसी दूसरे को हमें कुछ वस्तु देनी होती थी. आज की तरह पैसा नहीं था. तो इसमें जो आपका जर्नी ऑफ मनी हो जाएगा, इसमें फर्स्ट में सबसे पहले क्या आएगा? बार्टर सिस्टम. What is barter system? Goods exchange for goods. For example, I want to
बाय वीट एंड आई एम गिविंग माई बफेलो टू अदर, यानी गेहूं लेने के लिए मैं किसी दूसरे को बफेलो दे देता हूँ। तो ये हो गया कि किसी वस्तु के बदले वस्तु या कोई भी चीज़ देना। इट मीन्स कि पैसा नहीं था। गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, नेक्स्ट मेटेलिक मनी, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, अलॉय मेटल भी हो सकता है इसमें। मान लो कोई मिक्स मेटल हो तो वो भी हो सकता है, अलॉय मेटल भी हो सकता है। आजकल अलॉय मेटल ही है, एट दिस टाइम जो कॉइन है वो क्या है, अलॉय मेटल ही है। फिर उसके बाद लिखिए आप पेपर मनी, नोट्स, नेक्स्ट प्लास्टिक मनी, इसमें क्या जाएगा, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। एंड लास्ट ई मनी, ई मनी मीन्स यूपीआई, थ्रू यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल हो जाएगा यूपीआई। नेक्स्ट फर्स्ट बार्टर सिस्टम, it is a system of exchange goods for goods। Yes, example, two persons are doing transaction X and Y। X के पास है अवेलेबल, X के पास अवेलेबल है वीट और उसको नीड है राइस की। X के पास अवेलेबल क्या है, वीट, और उसको नीड किसकी है, राइस की। तो अब ये Y के लिए क्या होना चाहिए बताइए, Y के लिए अवेलेबल क्या होना चाहिए, विल यू प्लीज टेल मी। वेरी गुड, यस राइस, बिकॉज X नीड वी राइस, देन Y शुड हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ राइस, रिवर्ट हो जाएगा, और नीड हो जाएगा वीट का। अब यदि ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना तो बार्टर सिस्टम फेल होगा। इफ आई नीड वीट, आई एम हैविंग वीट एंड आई नीड राइस, मेरे पास वीट है और मैं राइस के लिए वीट दे सकता हूँ,
तो इसका मतलब है कि जिसको मैं वीट दे रहा हूं उसको भी वीट की जरूरत होना जरूरी है। यदि उसको वीट की जरूरत नहीं होगी तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग नीड। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि इसके लिए इसका मतलब नीड होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। दीज आर द सम ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। सो आई थिंक दिस इज थ्योरी पोर्शन, यू विल रीड इट। इसमें ड्रॉबैक्स वगैरह आप खुद रीड करेंगे, इसमें उतना कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो सारी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगी, ट्रांजेक्शन को फॉलो नहीं करेगी। अवेलेबल और नीड, और अवेलेबल और नीड ये दोनों क्या होना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई होना जरूरी है। इन योर VKORE बुक्स मैनी एग्जाम्पल्स आर गिवन अबाउट इट, फ्लो चार्ट इज गिवन, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड that only this will be the suitable combination. If I am having wheat, so I am having wheat and I need rice. तो जिसको जिसको मैं ये वीट ट्रांसफ़र करूँगा उसको भी क्या होना चाहिए, वीट की ज़रूरत होना चाहिए। और उसके पास अवेलेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, राइस की होनी चाहिए। उसके पास राइस होगा तो वो राइस मुझे दे देगा और मैं अपना वीट उसे दे दूंगा, तब ये बार्टर सिस्टम फॉलो होगा। अर्लियर वी वर यूजिंग इट। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ मनी। प्लीज राइट फॉर्म्स ऑफ मनी। फर्स्ट, फिएट मनी। क्या होता है फिएट मनी, लिखिए। इट रेफर्स टू दैट मनी which is issued by order or authority of the government, order और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, नोट्स एंड कॉइन्स, नोट्स एंड कॉइन्स। सेकेंड, फिड्यूसरी मनी, it is accepted as medium of exchange because of trust between payer and PAYER, payer and payee। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें चेक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग यू चेक, देन नॉर्मली यू आर नॉट हैविंग मनी इन योर पॉकेट। मैं आपको चेक दूंगा तो ऐसा थोड़ी चेक देते ही मैंने आपको पैसे दे दिए। इट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट आई शुड हैव इन माई अकाउंट। इफ आई एम नॉट हैविंग अ प्रॉपर बैलेंस इन माई अकाउंट, देन पेमेंट विल नॉट बी मेड बाय द बैंक, बाउंस होगा, चेक बाउंस होगा। तो ये पेयर और पेई, पेई हु इज पेयर, हु इज पेइंग, जो पैसे दे रहा है वो पेयर होगा और जो रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, पेई बोलेंगे, PAYEY। टू हुम वी आर पेइंग, दैट इज पेई, PAYEE। और पेयर जो पे कर रहा है, तो पेयर विल इशू चेक एंड ही शुड हैव sufficient amount
for which amount check has been issued. So it will depend upon faith of the two person payer and payee. So this money is known as fiduciary money. तो इसमें चेक और डिमांड ड्राफ्ट आएंगे. चेक, सॉरी, चेक आएगा, डिमांड, हाँ डिमांड ड्राफ्ट भी है. कैश देकर आप बनाओगे डिमांड ड्राफ्ट, तो ये विश्वास का काम है. डिमांड ड्राफ्ट आजकल नहीं चलते, पहले चलते थे, आजकल नहीं चलते. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पेरेंट्स वांट टू सेंड मनी टू हिज सन हु इज स्टडीइंग इन दिल्ली. अपने बच्चे के लिए पैसा भेजना चाहते हैं जो दिल्ली रहता है. अब 2 लाख रुपए यहाँ से दिल्ली लेके जाना है, इसका मतलब है रिस्की हो सकता है. तो वो यहीं की किसी बैंक में जाएंगे और 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाएंगे और उनको बोलेंगे कि रोहित के नाम से चेक बना दो, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट बना दो. तो बैंक पैसे ले लेगी और डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देगी. अब वो डिमांड ड्राफ्ट पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज देंगे, अपने जो भी उसका फ्रेंड है या उसके साथ, और वहाँ पे किसी भी बैंक में जाके वो उसका पैसा ले सकता है. तो ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? विश्वास पे डिपेंड करती हैं. ये मनी फिएट मनी नहीं हो सकती. इन फिएट मनी वी इंक्लूड ओनली नोट्स एंड कॉइन्स. इसमें आप नोट्स और कॉइन को इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट, थ्री, फुल बॉडीड मनी. Dear student, full bodied money I want to explain first. In earlier times, kings were issuing coins and they were engraving their seal on it. पुराने समय में राजा लोग सिक्का कॉइन वगैरह इशू करते थे और उस पे अपनी सील लगा देते थे. कॉइन होते थे, सिल्वर और गोल्ड के होते थे. दीज कॉइन्स वर जनरली ऑफ द मेटल गोल्ड एंड सिल्वर. और सपोज दैट द अमाउंट इज रिटन ऑन इट इज 1 रुपया. तो उस गोल्ड या सिल्वर के कॉइन का वैल्यू किसके बराबर होती थी? 1 रुपीज के ही बराबर होती थी. जैसे 5 रुपया है तो उस वो गोल्ड कॉइन वो कितने का होगा? 5 रुपए का ही होगा. व्हेन इट्स वैल्यू वाज इक्वल टू द मनी व्हेन इट वाज इशूड. मैं बात कर रहा हूं जब इशू की जाए, ध्यान से समझना कि किसी किंग ने या राजा ने कोई कॉइन इशू किया, तो इशू करते समय उसका वैल्यू कितना है? 5 रुपीज है. तो उस कॉइन पे भी जैसे आप यूं समझ लो कि जैसे ये एक मिनट, ये पेन मूवमेंट तो क्या होगा? यस, ये कॉइन है और सपोज कीजिए कि इस पे 5 रुपीज लिखा हुआ है और ये गोल्ड कॉइन है, तो ये 5 रुपीज होगा और इसका जो मेटल है उस मेटल की वैल्यू भी क्या होगी? 5 रुपीज ही होगी. बट वी नो दैट इन इकोनॉमी वी आर हैविंग फ्लक्चुएशन. तो कॉइन इशू किया है तो उस समय उसकी वैल्यू सेम होगी, बट बाद में उसकी वैल्यू एज डियरनेस विल इंक्रीज. जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो उसकी कॉइन की रुपीस की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और कॉइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी. यस, रुपीस की वैल्यू कम होती जाएगी बिकॉज मोर पर्सन्स आर कमिंग इन पॉपुलेशन. जैसे पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग आएंगे तो रुपीस की वैल्यू कम होगी और कॉइन का वैल्यू बढ़ेगा. तो लोग क्या करते थे? उन कॉइन को वापस मेल्ट करके उनसे ऑर्नामेंट बना लेते थे. अब बताइए, मनी मार्केट से गायब हो गए ना. और ये फोर लिखिए आप, इसमें लिखिए क्रेडिट मनी. थ्योरी बाद में लिखाएंगे, समझाना था मुझे. यस, क्रेडिट मनी में क्या जाएगा? अब देखिए जैसे अपने होता है 500 रुपीज का नोट होता है, ये कागज का होता है, पेपर का होता है. बताइए क्या उस पेपर की वैल्यू 500 रुपये होती है? नहीं होती ना. सो what is the reason that it is having the value of 500?
कैन यू टेल मी दक्ष? 500 रुपीज़ का नोट है, उसकी वैल्यू 500 रुपीज़ जितनी है, क्यों है? वो पेपर तो नहीं है 500 रुपीज़ का। फेस वैल्यू इज 500 एंड रीजन इज दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गिविंग गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के बिहाफ पर इसकी गारंटी कौन देती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि इस नोट की वैल्यू कितनी होगी? 500 रुपीज़ होगी। आ रही है बात समझ में? नहीं तो एक्चुअल में उस जो नोट का पेपर है उसकी वैल्यू तो 500 है ही नहीं, बट फिर भी उस कागज की वैल्यू 500 क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग गारंटी। नाउ मैं आपको थ्योरी लिखा देता हूं, प्लीज समझ लीजिए। फुल बॉडी मनी में क्या होगा कि उसकी रुपीस की वैल्यू उस मेटल के क्या होगी? बराबर होगी। जैसे ये कॉइन है, ये सिक्का और ये गोल्ड का है, तो 5 रुपीज लिखा हुआ है, तो 5 रुपीज के बराबर इस मेटल की वैल्यू होगी। दैट इज नॉन एज फुल बॉडीड मनी। और क्रेडिट मनी में क्या होगा? क्रेडिट मनी में जितना रुपीज उसके ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू उसकी जो नोट या कॉइन है उसकी मेटल या जो थिंग है उसके बराबर नहीं होगी। आ गया समझ में? फुल बॉडी मनी में क्या होगा कि जो कॉइन या जो मेटल होगा उसकी वैल्यू रुपीस की वैल्यू बराबर होगी। तो बताइए आज हम जो मनी यूज करते हैं वो फुल बॉडी मनी है या क्रेडिट मनी है? वो क्रेडिट मनी है। उसी 500 के नोट पे यदि 5 रुपए लिख दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 रुपीज हो जाएगी। अब लिख लो आप इसको। इट रेफर्स टू मनी it refers to money in terms of coins whose commodity value is equal to the value equal to the money value and when these are issued ये है। तो कमोडिटी वैल्यू क्या हो गई? इस कॉइन की मनी वैल्यू तो कितना है? 5 रुपीज। और इसका कमोडिटी वैल्यू भी कितना है? 5 रुपीज। कमोडिटी का मतलब है वो मेटल, तो वो कमोडिटी वैल्यू। अब यहाँ पर क्या डेफिनेशन हो जाएगी बताइए? कि यहाँ पर मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। और इसमें क्या हो जाएगा? फुल बॉडी मनी में कमोडिटी जो मनी वैल्यू है वो कमोडिटी वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसको लिख लो, क्रेडिट मनी में लिख दो। इट रेफर्स टू दैट मनी, इट रेफर्स टू दैट मनी of which money value is more than commodity value। ये क्रेडिट मनी हो गया। आज जो हमारे पास रुपीस है, 100 रुपीज नोट है, 50 रुपीज है, इनकी क्या है कि उनकी जो मनी वैल्यू है वो ज़्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है। जब भी तो है यदि 500 रुपीज के नोट है, ये किसी को उस यदि इनके नोट की जगह कॉइन होते और गोल्ड कॉइन होते तो क्या हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप होती? उन कॉइन को तो लोग क्या कर लेते? स्टोर कर लेते। ये सबसे बड़ा मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको समझने का तरीका यही है कि फुल बॉडी मनी ये क्यों गायब हुआ मार्केट से। यू कैन सी दैट कॉइन्स आर लिमिटेड एट दिस टाइम। और वो भी क्या है? लोहे के या पीतल का थोड़ा बहुत उनमें मिक्सचर होता है, अलॉय है वो, तो उनकी वैल्यू भी वहाँ पे भी उसके रुपीस से बिल्कुल क्या होती है? कम ही
होती हैं, और लिमिटेड है कि जैसे कॉइन भी चलना चाहिए, जरूरी है। पहले चलते थे तो आज भी चलने चाहिए। हिस्ट्री को थोड़ा बहुत मेंटेन करना क्या है, जरूरी है, इसलिए सरकार ने चला भी रखे हैं। लेकिन आप देखिए वहाँ पे उनकी वैल्यू क्या होती है, उसकी जो रियल वैल्यू मनी वैल्यू होती है उससे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम ही होगी। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी, so dear student, in reference to money there are two types of function, primary function and secondary function। ए हो जाएगा प्राइमरी फंक्शन एंड बी सेकेंडरी फंक्शन। वापस आप हेडिंग लिखेंगे, फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, first we will understand what is primary function। primary function means main function। प्राइमरी फंक्शन मीन्स मेन फंक्शन, कि मनी का मेन काम क्या होता है, बताइए सबसे मेन काम क्या है, क्या एक्ट करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फॉरमोस्ट वर्क इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो लिखिए आप इसमें फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। It is used for sale and purchase of goods and services। Yes, we all are using it for goods and services। हम कमोडिटी को जैसे गुड्स खरीदने और बेचने के लिए, सबके लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यूज फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। सेकंड लिखिए, मेजर ऑफ वैल्यू, और यूनिट ऑफ वैल्यू। Yes, so measure of value means it can be measured in terms of values। For example, if we take the service of पेंटर, आप एक पेंटर की सर्विस लेते हैं, जैसे आपने कोई वॉल या कोई मान लो कोई फर्नीचर है वो पेंट करवाया है, तो अब उसको पैसे देने हैं, तो आप बताइए आप है ना उसके लिए आप मनी के रूप में उसकी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं या नहीं। वी कैन मेजर द वैल्यू कि उसको कितने पैसे देने हैं। तो द सर्विसेज वी आर टेकिंग, वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ द सर्विस इन मनी। आप उसकी मेहनत की या उसकी मतलब उसका जो एफर्ट्स हैं उसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। सो यू विल गिव 200 और 300 और 400। सो इन दिस रेफरेंस वी कैन से दैट वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ मनी, कि इसको कितना रुपया देना है, हाउ मच मनी वी विल गिव। बताइए उतना ही देते हैं। मान लो कोई डिश लगा के चला गया, कितने रुपए देंगे, 400 500। अब मान लो वो कहे 3000,
सवाल ही नहीं है, तो ये आपको पता है. सो वी आर मेजरिंग द वैल्यू. सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. इट विल यूज फॉर मेजर द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ यूनिट्स. सेकेंड लिखिए सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन. फर्स्ट ए लिखो, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट. क्या होता है डेफर्ड पेमेंट? द डेफर्ड पेमेंट्स आर द पेमेंट दैट वी आर मेकिंग इन नियर फ्यूचर. जिन पेमेंट को आप अभी नहीं करके और क्या करते हैं, इन फ्यूचर करते हैं. आफ्टर सम टाइम यू आर पेइंग, दैट इज नोन एज डेफर्ड पेमेंट. सो यू कैन राइट इट. इट रेफर्स to that payment which is made in future. So this is secondary function. I want to connect it with barter system for easy explanation. Suppose that in barter system I am buying wheat from Daksh and I am giving him egg. अब बताइए क्या ये एग तुरंत देने पड़ेंगे या बाद में दे सकता हूँ कि नहीं 10-15 दिन बाद में दे दूंगा? तुरंत, क्योंकि 10-15 दिन बाद तो वो एग क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग अब मेरे पास से जाएंगे ही जाएंगे और मुझे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये मेरे भी किसी काम के नहीं रहेंगे और अगले के भी किसी काम के नहीं रहेंगे, बिकॉज इट इज पेरिशेबल. बट क्या मनी में ऐसा है? मनी में जैसे मान लो कि अभी मैंने कोई गुड्स परचेज किया और अब घर में कोई बीमार हो गया एंड आई नीड 500 रुपीज़, तो बताइए मैं उसको मना कर सकता हूँ या नहीं कि नहीं मैं आपको 4 दिन बाद में दूंगा. एंड दैट 500 रुपीज़ आई कैन यूज फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर. तो बताइए मैंने पेमेंट को डेफर किया या नहीं किया? क्या ये सुविधा बार्टर सिस्टम में थी? ये नहीं थी. आ गया ना समझ में? दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इट मीन्स वी कैन ट्रांसफर अवर पेमेंट फॉर कमिंग फ्यूचर. बी लिखिए इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू. It refers to store of wealth. It refers to store of wealth. Yes, store of value means you can store its value. For example, if you are having 1 lakh rupees at this time and bank is offering कि आज आप 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करवा दो, 5 साल बाद हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे, है ना? तो आज आप एफडी करवा सकते हैं या नहीं? क्या अंडे की एफडी हो सकती थी कि आज मैं 1 अंडा दे देता हूं और 5 साल बाद आप मुझे 2 अंडे दे दोगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है. पता लगा कि 5 साल बाद अंडे के बिजनेस करने वाला ही खत्म हो गया. बट क्या मनी में ऐसा होगा? मनी का सिस्टम बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है. किसी बैंक में आपने एफडी करवाई, उसमें कोई भी मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी एफडी का पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो सच टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज वर नॉट अवेलेबल एंड नाउ दीज आर अवेलेबल. वी कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ इट. और इसमें आप एफडीआर भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट्स. एफडीआर इसका क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट. बताइए आपने वैल्यू स्टोर की या नहीं की? आपको लगता है कि 1 लाख रुपया है, 5 साल बाद इसकी वैल्यू आधी हो जाएगी, तो इसको बैंक में डिपॉजिट कर दो, इसकी वैल्यू इक्वल होगी या नहीं होगी? भाई 5 साल बाद इसकी वैल्यू आधी हो जाएगी तो कन्फर्म है आप इसको डिपॉजिट कर दो, डबल मिल जाएंगे आपको.
तो आप वैल्यू आधी होनी है उससे बच जाएंगे आप। लेकिन यही पैसा यदि आपके पास पड़ा रहा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू आधी रह जाएगी। 1 लाख आप आज आपके पास है, 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या 1 लाख रहेगी? और क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप इसे पार्टिसिपेटिंग वे में लेंगे, यू विल इशू इट, यू विल डिपॉजिट इन टू बैंक, देन वी विल एबल टू मेक इट्स द वैल्यू फॉर फ्यूचर। तो आप इसकी फ्यूचर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसमें एक और लिखिए, थर्ड सी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ई ट्रांजेक्शन आप इसमें इंक्लूड करेंगे। ई ट्रांजेक्शन, generally who are using this? Multinational companies, these are using it, transfer of value. It means at this time this is secondary function, we are not having any need for it in form of paper. आज आप ई मनी में बताइए पेपर की जरूरत है क्या? तो एक्चुअल में देखा जाए तो पेपर की कॉस्ट कम हुई है या नहीं? इलेक्ट्रॉनिकली वी आर ट्रांसफरिंग इट, सो इट्स पेपर कॉस्ट इज रिड्यूसिंग। सो ये न्यू कंसेप्ट है, पहले नहीं था, ई ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ है। दीज आर यूज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ मनी। Supply of money. Who is the supplier of money? Supplier of money is Commercial Bank and Reserve Bank of India. In our India, supplier of money is Reserve Bank of India and Commercial Bank. Through bank, we are getting money by transactions. If you are doing job, then your employer will pay salary. तो आप ये कहोगे कि मुझे तो सैलरी मेरे एम्प्लॉयर ने दी है, बट उसका मेन सप्लायर कौन है? वो पैसा आया कहाँ से है? तो इसका मेन जो सप्लायर है वो कौन होगा? बैंक ही होगा। यू आर डूइंग जॉब फॉर मी, यदि आप मेरे लिए काम करते हैं, मैंने आपको पैसा दे दिया, मेरे पास कहाँ से आया कि मैंने एक्स से लिया, एक्स के पास कहाँ से आया कि के से लिया, तो के पास कहाँ से आया कि बैंक से निकाला था। तो मेन ओरिजिन विल बी बैंक। तो सप्लायर्स आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉमर्शियल बैंक, दीज आर द बैंक। तो ये कभी भी है ना, ये सप्लायर होंगे तो इनके लिए मनी कभी सप्लाई नहीं हो सकती। आरबीआई एंड रिजर्व बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक आर हैविंग मनी। कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के पास पैसा पड़ा है तो वो मनी की सप्लाई नहीं है, बिकॉज सप्लायर के लिए वो सप्लाई हो ही नहीं सकता। इफ यू आर सेलिंग वेजिटेबल्स, इफ यू आर सेलिंग वेजिटेबल्स, तो क्या सेल करने के लिए वाले के लिए वो सप्लाई है? वो सेल करने वाले के लिए सप्लाई नहीं हो सकती, बिकॉज सप्लाई इज रिलेटेड टू कंज्यूमर टू whom we are providing. So please keep in mind, money is not supply for Reserve Bank of India and commercial bank. लिखिए आप सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? इट रेफर्स टू total stock of money. It refers to total stock of money. Please write in bracket of all types, bracket close, held by the people
of a country, held by the people of the country at a particular point of time, at a particular point of time. So dear student, keep in mind the money which is being held by Reserve Bank of India and bank, this is not supply. कौन सी मनी सप्लाई है? जो किसके पास है? पब्लिक के पास है. आपकी और हमारी पॉकेट में जो मनी है वो क्या है? दैट इज सप्लाई ऑफ मनी. आरबीआई और बैंक के लिए कभी भी वो मनी सप्लाई नहीं होगी. किस किस के लिए सप्लाई नहीं होगा? लिखिए, इट इज नॉट सप्लाई, इट इज नॉट supply for a stock of money held by government, stock of money held by गवर्नमेंट. कहीं ना कहीं मनी का सप्लायर किसको? गवर्नमेंट को ही भी माना जाता है, क्योंकि सरकार के आरबीआई विल वर्क विद द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. सो स्टॉक ऑफ मनी विच इज होल्ड बाय गवर्नमेंट. बी लिखिए, स्टॉक ऑफ मनी held by banking system. तो ये आपको ध्यान रखना है. आई थिंक इट इज क्लियर. गवर्नमेंट एंड banks, maybe RBI or maybe commercial bank, they are having the money. This is not supply. सप्लाई वो है जो पैसा किसके पास जाता है? पब्लिक के पास जाएगा, वो सप्लाई होगा. नेक्स्ट टॉपिक, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. ये स्लाइड चेंज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे. आप लिखिए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. measures of money supply. Yes. How many types of money supply is there? M1, M2, M3 और M4. M1 में क्या हो जाएगा? CU प्लस DD प्लस OD. M2 में आ जाएगा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट. M3 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट इसमें हटेगा और उसकी जगह क्या हो जाएगा? टाइम डिपॉजिट विद बैंक. टाइम डिपॉजिट विद बैंक. एंड M4, अब इसमें वापस पोस्ट ऑफिस ऐड हो जाएगा. M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, प्लीज राइट इन ब्रैकेट, excluding NSC
क्या होता है एनएससी? ब्रैकेट में लिख देता हूं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। Yes. Today I want to explain in brief, and in our next class we will read in detail. Yes, M1. These are the types of money: M1, M2, M3, M4. What is M1? CU. CU means currency. Currency which is held by public. Public के पास जो पैसा है वो क्या होगा? Currency. And DD. DD means demand deposit. Demand deposit means, dear student, you are having saving account in your bank and in that account you are having money. बताइए वो डिमांड डिपॉजिट है या नहीं? पहले समझिए डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। जो पैसा आपको डिमांड करते ही मिल जाए। बताइए आपका ही पैसा है, बैंक में डिपॉजिट है, तो आप जब भी वापस मांगोगे बैंक दे देगा या नहीं? तो वो डिमांड डिपॉजिट है या नहीं? बट यदि आपने एफडी करवा रखी है, तो एफडी करवा रखी है तो उस फॉर्म में नहीं देगा, दे तो देगा बट आपको एफडी सरेंडर करना पड़ेगा। बट इसलिए एफडी नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल ऑन डिमांड। तो ये आ जाएगा डिमांड डिपॉजिट। एक होता है ओडी। व्हाट इज ओडी? अदर डिपॉजिट। इट मीन्स मनी इज होल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग सिस्टम, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ओडी में आ जाएंगे। रिजर्व मनी होल्ड बाय आरबीआई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। These institutions are having money, so these are other deposit. क्योंकि पैसा हमारे पास ही थोड़ी है, पैसा तो बैंकों के पास भी है, तो वो किस में आएगा? वो आ जाएगा अदर डिपॉजिट में आ जाएगा। डीडी में कौन सा पैसा आएगा? पब्लिक मनी विच इज अवेलेबल ऑन डिमांड। आप डिमांड करो तुरंत आपको दे देगा। जैसे मैंने आई एम हैविंग सेविंग अकाउंट इन बैंक एंड आई एम डिपॉजिटिंग मनी देयर, करवा दो डिपॉजिट, 2-3 घंटे बाद आपको पैसा चाहिए तो वापस मिल जाएगा या नहीं? इट मीन्स दैट अमाउंट इज अवेलेबल ऑन डिमांड। उसको बोलते हैं डीडी, डिमांड डिपॉजिट, मीन्स डिपॉजिट विच इज अवेलेबल ऑन डिमांड। और ओडी अदर डिपॉजिट, मनी होल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी होल्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मनी होल्ड बाय वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज नॉन एज ओडी। अब देखिए आप M2 में क्या हो जाएगा? M1 तो पूरा का पूरा आ जाएगा और इसमें पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस में जो पैसा है एज ए सेविंग डिपॉजिट। और M3 में क्या होगा? M1, M2 नहीं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। मतलब जो आपने बैंकों के साथ पैसा जमा करा रखा है, टाइम डिपॉजिट मीन्स कौन सा डिपॉजिट? FDRD, दैट इज M3। और M4 में M3 में देखो बैंक का तो प्लस हो ही गया, अब पोस्ट ऑफिस का भी वापस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यस, these national saving certificates, what is this? When government is having scarcity of money in the market, कि मार्केट में पैसा क्या है? कम है, सॉरी ज़्यादा है। मार्केट में पैसा ज़्यादा होता तो सरकार क्या इशू करती है? बॉन्ड इशू करती है, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, कि एट दिस टाइम यू विल डिपॉजिट अस 1 लाख रुपीज़ एंड आफ्टर 6 years वी विल गिव यू 2 लाख रुपीज़। कि आज आप हमें 1 लाख रुपया दे दो, 5 साल बाद हम आपको 2 लाख रुपया दे देंगे। तो बताइए लोग डिपॉजिट करवाएंगे या नहीं? आज का यूथ तो डिपॉजिट नहीं करवाएगा, लेकिन ओल्ड एज पर्सन तो जरूर करवा देंगे, बिकॉज दे नीड सिक्योरिटी। वन एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू एड हियर, कल को इमरजेंसी आ जाए, युद्ध हो जाए, तो बताइए बैंक में आपका कितना पैसा सुरक्षित है? ओनली एंड ओनली 5 lakhs। 5 लाख से ज़्यादा पैसा आपका सुरक्षित है ही नहीं। बैंक उस पैसे को काम में ले सकती है, बैटल में काम में ले सकती है, इमरजेंसी में काम में ले सकती है। हाँ, दे देगी बाद में, बट आपके पैसे को काम में ले सकती है। बट एनएससी का पैसा वो आपको वापस तुरंत देगी। सो दिस इज डिफरेंट। लास्ट में 1 मिनट में मैं क्लास को खत्म करूंगा। यस, दिस इज नॉन एज नैरो मनी। इन दोनों को क्या बोलते हैं?
नैरो मनी। ये दोनों मनी क्या हो जाएगी? नैरो मनी। और ये वाली दोनों क्या हो जाएगी? इन दोनों को बोलेंगे ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी। So dear student, M1 and M2 is narrow money और M3 and M4 is broad money। और अब लास्ट में M3 के गोला लगा दो। M3 कौन सा मनी है? सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मनी। M3 is the money which is mostly used। Thank you very much and we will meet in our next class।